Welcome to English grammar class. So before we continue, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, dear students, today we will solve exercise 4th and 5th of chapter number 1, the sentence. Now exercise 4th and 5th is about the interchange of exclamatory and assertive sentences. So we can change one exclamatory sentence into assertive sentence, and similarly we can change one assertive sentence into exclamatory sentence. Now exclamatory and assertive sentences can be interchanged as shown in the following examples. So let's read those examples. Exclamatory sentence is, "What a charming sight." Now assertive sentence will be, "It is a very charming sight." Now keep this one thing in your mind, that one assertive sentence will always contain one subject, one verb and one object. For example, it is a subject here, is a verb, a very charming sight is a object. So when you are changing one exclamatory sentence into assertive sentence, sometimes you have to put one subject from yourself. जब आप एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करोगे, कभी कभी उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको सब्जेक्ट खुद से भी डालना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, व्हाट अ चार्मिंग साइट, जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एक आपको सब्जेक्ट नहीं मिला है ना, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इट. उसके बाद इज़, फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमने खुद से डाली, इट इज़ अ चार्मिंग साइट. व्हाट अ चार्मिंग साइट, अ वेरी चार्मिंग साइट, ये भी यहाँ पे वेरी हमने खुद से डाल दिया. नाउ इट इज़ अ वेरी चार्मिंग साइट हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया. नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज, अलास माई फ्रेंड इज़ नो मोर. तो जब भी वर्ड अलास यहाँ पे आएगा तो उसका मतलब है इट इज़ सो सैड. अलास की स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है, इट इज़ सो सैड, या फिर व्हाट अ पिटी इट इज़, वहाँ पे भी आप अलास लिख सकते हो. अगर वहाँ पे आ गया इट इज़ अ पिटी, तो वहाँ पे भी आप अलास लिख सकते हो. ठीक है. माई फ्रेंड इज़ नो मोर, इट इज़ सो सैड डैट माई फ्रेंड इज़ नो मोर. अब ये बन गया एक असर्टिव सेंटेंस. अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज, हाउ वेल शी सैंग. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सैंग. तो सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ पे हमें मिल गई. अब ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, यहाँ पे वेल लिखा हुआ है, सो वी कैन राइट शी सैंग वेरी वेल. ठीक है. ऑब्जेक्ट के साथ हमने वेरी खुद से डाल दिया. नाउ वी हैव अ सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड वन ऑब्जेक्ट. So now this is a assertive sentence. Exclamatory sentence is, oh that I had the wings of a bird! Exclamation mark. So जब कहीं पे भी oh that आ गया, मतलब यहाँ पे कोई विश के बारे में बात की गई है, तो oh that को आप हमेशा I wish के साथ चेंज करोगे. I wish I had the wings of a bird. Full stop. Now this is one assertive sentence. Now let's begin with exercise 4. Change the following into assertive sentences. इनको आपने assertive sentences में change करना है. First is, what a fool he was. अब जब assertive में change करोगे, वहाँ पे सबसे पहले लिखोगे subject जो था he, then लिखोगे verb जो है was, और उसके बाद लिखोगे object. Object क्या है, a fool. He was a fool, subject, verb and object, and then full stop. Now this is one assertive sentence. How kind of you to help us! Exclamation mark. सो जहाँ पे आपको कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सो वी विल राइट वन
subject from ourselves. It was kind of you to help us. ओके अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट खुद से डाला, फॉर्म ऑफ वर्ब खुद से डाली, काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस ऑब्जेक्ट हमें यहीं से मिल गया. ठीक है. थर्ड, हाउ द माइटी हैव फॉलन. अब यहाँ पे द माइटी सब्जेक्ट है, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब है और फॉलन ऑब्जेक्ट है. सो यू विल राइट द माइटी हैव फॉलन. नाउ दिस इज वन assertive sentence. फोर्थ इज व्हाट अ टेरिबल मैन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सो वी विल राइट वन सब्जेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ एंड देन वन वर्ब. Subject and verb, then a terrible man is the object. He is a terrible man, full stop. Fifth is a soldier and afraid of fighting. So the soldier or a soldier, ये हो गया हमारा subject. is हमने खुद से डाला है. The soldier is afraid of fighting. Afraid of fighting object है, is वर्ब है, द सोल्जर सब्जेक्ट है. तो इन सब का कॉम्बिनेशन assertive सेंटेंस. वुड डैट माई फादर वर हियर टुडे. वुड डैट, अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था ओ डैट को हम हमेशा चेंज करेंगे आई विश में. सो उसी तरह से वुड डैट को भी हम हमेशा चेंज करेंगे आई विश में. आई विश माई फादर वर हियर टुडे. दैट्स इट. Now, seventh is what a lovely child. So यहाँ पे भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. So we will write one subject. He is भी हमने खुद से डाला. A lovely child object already given था. He is a lovely child. Full stop. Oh that I had the swiftness of lightning! Exclamation mark. ओ डैट को किस में चेंज करेंगे? आई विश में. उसके बाद ये सारा सेंटेंस एज इट इज. आई हैड द स्विफ्टनेस ऑफ लाइटनिंग. हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दिस. ठीक है, यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है जिससे हम इसकी स्टार्टिंग कर सकें. सो वी हैव स्टार्टेड दिस सेंटेंस विद इट. इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी टू से दिस. वट अ रैश डीड यू हैव डन. नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा था यू, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब थी हैव. यू हैव और डन, यू हैव डन, ये सारा ही फॉर्म ऑफ वर्ब थी. अ रैश डीड ऑब्जेक्ट था. सो यू हैव डन अ रैश डीड. फुल स्टॉप. ओके. नाउ एक्सरसाइज फिफ्थ. चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. अब हमें इनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में चेंज करना है. सो लेट्स बिगिन. द फार्म हाउस हैज़ अ डेजर्टेड लुक. सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? वट अ डेजर्टेड लुक द फार्म हाउस हैज़. इसमें ध्यान देना है कि हमेशा जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो एंड में आएगी. स्टार्टिंग इसकी हाउ, वट, ऐसे सेंटेंसेस से आप कर सकते हो. उसके बाद अ डेजर्टेड लुक. ठीक है, अ डेजर्टेड लुक, ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव. मतलब वर्ड के बाद आप जो भी एडजेक्टिव गिवन होगा वो डाल दोगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होगी वो. व्हाट अ डेजर्टेड लुक द फार्म हाउस हैज़. सेकेंड इज इट इज़ अ पिटी दैट ही हैज़ टू अंडरगो ऑल दिस. इट इज़ अ पिटी, इसको हमेशा चेंज करोगे अलास्ट में. ठीक है. देन डैट को हम नहीं लिखेंगे. अलास्ट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डैट नहीं लिखेंगे. He has to undergo all this, ये हमने सेम लिख दिया. और उसके बाद फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क. We had a wonderful time last weekend. इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं वट से और उसके बाद जो एडजेक्टिव a wonderful time, we had last weekend, exclamation mark. Fourth is his sacrifice was remarkable. So पहले हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं how से, then the adjective remarkable, then his sacrifice was. How remarkable his sacrifice was. I wish I had never left my home. अब I wish को आप चेंज करोगे ओ डैट में. जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, ओ डैट को आई विश में चेंज किया था, उसी तरह से आपने आई विश को ओ डैट में चेंज कर देना है. एंड द कंप्लीट सेंटेंस एज इट इज़. आई हैड नेवर लेफ्ट माई होम, एक्सक्लेमेशन मार्क.
इट इज़ अ पिटी डैट ही इज़ अंडन। इट इज़ अ पिटी को चेंज कर दिया लास्ट में, डैट हमने नहीं लिखा एंड ही इज़ अंडन एज इट इज़। आई विश आई वर यंग अगेन। सो आई विश को चेंज कर दोगे ओ डैट में और लिख दोगे आई वर यंग अगेन। द माइटी हैव फॉलन। सो इसको चेंज कर दोगे हाउ द माइटी हैव फॉलन में। इट वॉज माई बैड लक डैट आई मेट द मैन। इसको लिख सकते हो हाउ अनलकी इट वॉज डैट आई मेट द मैन। इट इज़ अ वेरी लवली रोज। इसको दो तरह से चेंज कर सकते हो, हाउ लवली द रोज इज और वट अ लवली रोज इट इज़। So that's it. Dear students, you have to write this work on your fair notebooks and all the very best.